یہ پالم سنڈے ہے کیا؟ یہ کھجوروں کا تہوار کیوں منایا جاتا ہے؟ اس کے اندر یہ جو کلام پاک میں سے تلاوت پاک کی گئی ہے، اس ہر لفظ کے اندر بھید ہے اور برکت اور مستقبل کی، فیوچر کی باتیں، پریڈکشن، نبوتیں، پیشن گوئیاں کی گئی۔ زکریا نبی جو پرانے عہد نامے کا ایک نبی ہے، جو قوم کو ایک خوشی کا پیغام سناتا ہے اور ایک بڑی پیشن گوئی کی اس نے، جیسے میکا نبی نے مسیح خداوند کے تعلق سے پیشن گوئی کی، حضرت ابراہیم، حضرت ابراہم نے پیشن گوئی کی مسیح یسوع کے تعلق سے، حضرت داؤد، مقدس داؤد نے پیشن گوئی کی مسیح کے تعلق سے، اور سب سے پہلے خدائے قدوس نے خود مسیح یسوع کے تعلق سے پیشن گوئی کی۔ اسی طرح زکریا نبی ایک ڈیفرنٹ قسم کی پیشن گوئی کر رہا ہے، جیسے یوسیہ نبی نے ایک پریڈکشن کی، نبوت کی، اور وہ تھی کہ ایک کنواری حاملہ ہوگی۔ یوسیہ نبی کے صحیفے کے اندر غالباً 7ویں باب کے اندر ہے کہ کنواری حاملہ ہوگی اور بیٹا جنے گی، اور یہی بات فرشتہ لے کر مقدسہ مریم کے پاس آیا اور وہ نبوت پوری ہوئی۔ اسی طرح زکریا نبی نبوت کرتے ہیں، پرانے عہد نامے کا نبی، مسیح خداوند کی آمد سے پہلے پیشن گوئیاں ہو رہی ہیں۔ اب پیشن گوئی کیا ہے؟ اے بنت سیون، تو نہایت شادمان ہو۔ آپ تھوڑی توجہ کریں کہ نبی ہے اور وہ قوم کو پیغام دے رہا ہے، اور پیغام کیا ہے کہ اے بنت سیون، تو کیا کر؟ نہایت شادمان ہو۔ شادمانی کی خبر، گڈ نیوز، خوشی کی خبر، یعنی سیون یروشلم کی بیٹیوں خوشی مناؤ۔ یہ مسیح یسوع کے تعلق سے پیشن گوئی ہے، اور کہا دختر یروشلم خوب للکار۔ کیا کر؟ خوب للکار۔ جیسے بھی ہم باہر للکارے ہیں، ہم نے بڑی للکار کے ساتھ نعرے لگائے ہیں، جیسے جاتی جولیت للکارتا تھا، کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ اب یہ نبی کہہ رہے قوم کو کہ خوب للکار۔ وجہ یہ ہے کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس، ذرا میرے ساتھ رہیے گا، تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ قوم کو پیغام ہے کہ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے۔ یہودیوں کا بادشاہ، بادشاہوں کا بادشاہ، جس کے بارے میں انجیل منورہ میں لکھا ہے کہ وہ پیدا ہی کیا ہوا ہے؟ بادشاہ پیدا ہوا ہے۔ مجوسی کہنے لگے یہودیوں کا جو بادشاہ پیدا ہوا ہے وہ کدھر ہے؟ کتنی عجیب بات ہے۔ آپ سب کو پتا ہے بادشاہ تو بنائے جاتے ہیں، مقرر کیے جاتے ہیں، چناؤ کیا جاتا ہے، مسا مخصوص کیا جاتا ہے، ایک پراپر اس کا طریقہ کار ہے، لیکن یہاں پر کیا ہے؟ وہ پیدا ہی بادشاہ ہو رہا ہے۔ اب اسی بادشاہ کے تعلق سے زکریا نے کہا کہ دیکھ
ये बादशाह क्या कर रहा है? खुद ही क्या कर रहा है? पास आ रहा है। दरअसल तो लोग बादशाहों के पास जाते हैं कि बादशाह कभी आया किसी के पास चल के? बादशाह को तो बड़ा रौब होता है, उसका अपना एक अंदाज होता है, एक रुतबा मकाम होता है, लेकिन ये जो बादशाह है ये खुद चल कर आपके पास आया है। और बादशाह की सवारी कौन सी थी उस वक्त? जरा बोलिए, उस दौर में बादशाह की सवारी कौन सी होती थी? घोड़े की, हाथी जी, घोड़ा, हाथी, घोड़े, बड़ी बड़ी नस्ल के कीमती घोड़े आज भी हैं, रथ, शाही सवारियां, और वो उस पर आते थे। और ये बादशाह किस पर आ रहा है? सवारी कौन सी है? लिखा है वो हलीम है और गधे पर। परसों मेरा पूरा प्लान बन चुका था कि एक गधे का भी बंदोबस्त कर लूं, और गधा इस जुलूस में साथ साथ जाएगा। फिर मैंने कहा चले अभी मैं लेट हो गया हूं तो नेक्स्ट ईयर गधा भी होगा जुलूस में, पूरा पैगाम होगा। तो हम प्रेसिडेंट साहब को कहेंगे आओ खोलते थे बाबा पर, वो बैठेगा। आसिफ अली जरदारी को अगर हम कहते कि आप गधे पर बैठे, वो बैठेगा? या किसी भी मुल्क के सदर को आप कहिए आप गधे पर सवारी करें, वो बैठे हो गएगा यार ये क्या कर रहे हो, फिर तो हीन कर रहे हो। गधे पर बैठाने की तो ये तो सजा है, बेइज्जती। कोई गलत काम करते तो गधे तो नहीं बहा देंगे कि खोते ते बहा के सारे शहर की पिंड की की करो जरा इनू सैर कराओ, मुंह भी इहदा नाले काला करो, कई टिंड कर देंगे ने। यानी ये बेइज्जती की अलामत है। लेकिन ये जो बादशाह है ये क्या कर रहा है? चुनाव क्या है? ये मसीह ने चुनाव गधे का इसलिए किया है कि नबूवत ज़िक्रिया नबी ने कर दी थी कि क्या होगा, वो गधे पर क्या करेगा, बल्कि जवान गधे पर लादू के बच्चे पर सवारी करेगा। लेकिन थोड़ा सा ऊपर देखे, लेकिन क्योंकि तेरा बादशाह तेरे पास आता है, और जो बादशाह है उसके पास उसकी क्वालिटी क्या है? ये दूसरे बादशाहों की भी क्वालिटियां देख रहे, झूठ भी बोलते हैं। आपने देखा जब सियासत इलेक्शन होते हैं तो कितना जो पार्टीज होती है वो एक दूसरे के खिलाफ कितना बोलते हैं, बाद में किस तरह गले मिलते हैं, पता ही नहीं लगता कि कभी आपस में एक दूसरे के खिलाफ सियासी बयान भी दिए होंगे बुखार। लेकिन ये कौन सा बादशाह है? सुनिएगा क्वालिटी क्या है, ज़िक्रिया नबी क्या फरमाते हैं। नंबर 1 वो सादिक है। मसीह के बारे में क्या प्रेडिक्शन पेशन गोई है, वो क्या है? सादिक है। जरा सारे बोल दो सादिक है। भाइयों इधर ही हो सारे, पक्के लगे ने, नींदर तो नहीं कितने आ गई? कई पता होंगे नींदर नहीं ना पूरी होंगी, कई गरजे भी नींदर पूरी कर लेते चुप करके। इतने नींदर पूरी नहीं कर देनी, आप भी नहीं करनी, आप भी नींद थोड़ी करी दी है तो कोशिश करने के थोड़ी नींद करिए। सुनिए, नंबर 1 ये बड़ी खास बातें हैं जो कलीसिया सीखे और बरकत पाए। मसीह के बारे में जो पहली क्वालिटी ज़िक्रिया नबी ने कही कहा वो हो सादिक है। वो झूठ उसके अंदर रत्ती भर भी नहीं है। वो सादिकुल कौन है? यानी सच्चाई का बादशाह है और सच्चाई से फैसले करेगा। नंबर 2 और नजात उसके हाथ में है। नजात उसके हाथ में है। फरिश्ते ने क्या कहा कि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। लिखा है निजात उसके हाथ में है। 2 किस्म की निजात है। एक वो है जो कौम बनी इस्राइल को मुकद्दस मूसा की लीडरशिप में रिहाई मिली, मिस्र की गुलामी से उनको निकाला, ये दुनियावी है। एक निजात वो है जो अबदी है। अब शीख खुदावन जो निजात लेकर आए थे वो कौन सी थी? वो ये दुनियावी सेकुलर सॉल्वेशन नहीं थी। वो कौन सी थी? वो अबदी थी, वो हमेशा कायम रहने वाली थी। और क्या निजात उसके हाथ में है। नंबर 3 वो
कलीसिया भी हलीम है कि नहीं? कई कलीसिया के मेंबर बड़ी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, या कई फैमिली मेंबर्स बड़ा जल्दी हाइपर हो जाते हैं, बड़ी जल्दी छोटी सी बात पर ही गुस्सा आ जाता है कि ये क्या, इसने मुझे ऐसे क्यों कह दिया, ये क्या हो गया, तूने मुझे ये कर दिया, वो एकदम से यानी हाइपर हो जाना, ब्लड प्रेशर आ जाता। लेकिन ये क्या है? हलीम है। लिखा है कि वो हलीम है। नंबर 4, और गधे पर के सवार गधे पर सवार। सवार है। ये खास क्वालिटी मसीह खुदावंद के ताल्लुक से। अब आइए यूहन्ना की इंजील में जरा चलते हैं। निकालिए यूहन्ना की इंजील, उसका 12वां बाब, 12वीं आयत। जो निकाल ले वो जल्दी से पढ़ दे। यूहन्ना चैप्टर 12 वर्स 12 से। जी, दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है। बहुत सारे यहूदी जो ईद में आते हैं, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां हाँ, कौन सी डालियां ली? खजूर की डालियां उन्होंने पकड़ ली। यरूशलेम के अंदर खजूर के दरख्त और खजूरें कसरत से पाई जाती हैं, और लोग जो दीगर इलाकों से आते थे, जब वो वापस जाते थे तो वो यरूशलेम से खजूर की डालियां, खजूरें साथ लेकर जाते थे और जाकर ये बताते थे कि हम यरूशलेम से आए। जैसे आजकल बहुत सारे लोग, जब हमारे मुस्लिम भाई या हमारे क्रिश्चियन बहन भाई जब जॉर्डन या सऊदी अरब या वो जाते हैं, तो वहाँ से वो खजूरें और पानी लेकर आते हैं आबे ज़मज़म, तो वो इस बात की तस्दीक करवाते हैं कि हम वहाँ से होकर आए। तो इसी तरह लोग यरूशलेम से जब वापस जाते थे, खजूर की डालियां, खजूरें अपने साथ वापस लेकर जाते थे, ताकि वो बताते थे कि हम यरूशलेम से होकर आए। तो उन्होंने क्या किया? ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, ये सुनकर कि यीशु यरूशलेम में आता है, खजूर की डालियां ली, खजूर की डालियां ली, और उसके इस्तकबाल को निकल उसके वेलकम को निकले, पुकारने लगे, होशना, होशना, मुबारक है। कलीसिया भीड़ क्या पुकार रही है? होशना। ये इब्रानी जुबान का लफ्ज है जिसका तर्जुमा है हमें बचा, से नो, हमें छुड़ा, हमें रहाई दे। मुतालबा क्या था कौन का? मसीह से। उन्होंने मसीह को अपना बादशाह माना। मसीह को क्या माना? अपना बादशाह माना, और डिमांड क्या रख दी? हमें क्या कर? डिमांड, जैसे सियासी लीडरों के सामने डिमांड रखी है वोट देने से पहले, तो इन्होंने एक डिमांड रखी यीशु के सामने, और वो डिमांड क्या थी? हमें क्या कर? बचा, सेव नाउ, हमें छुड़ा, हमें बचा। किन से? रूमी हुकूमत से, इन रूमी सिपाहियों से, इनके कब्जे से हमें छुड़ा। ये एजेंडा था उनका। खुदावंद को पहले उन्होंने बादशाह तस्वर किया, फिर डिमांड रख दी, और डिमांड में क्या किया? नारे बुलंद किए, होशाना, 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 बुलंद नारे किए कि हमें बचा, हमें छुड़ा, हमारी मदद कर। और फिर क्या हुआ? होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, खुदावंद के नाम पर आता है, और इस्राएल का बादशाह है। और इस्राएल का क्या है जी? बादशाह है। अब जब दूसरे बादशाह ने सुना कि कौम ने इसको अपना बादशाह तस्वर कर लिया, तो उनको बड़ी परेशानी शुरू हो गई, और इन्होंने क्या कहा? वो इस्राएल का बादशाह है। जी पढ़िए। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला, जी, तो उस पर सवार हुआ, जी, जैसा कि लिखा है कि जी, एसयून की बेटी, एसयून की बेटी, मत डर, मत डर, देख तेरा बादशाह, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर, गधे के बच्चे पर सवार हुआ आता है। सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें न समझे, पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा, लेकिन
याद आया उनको याद आया ये बातें उसके हक में लिखी हुई ये बातें उसके हक में शिकरिया नबी ने कहा था कि देख तेरा बादशाह आता है, इसलिए कौम ने कहा ये इस्राएल का बादशाह है, ये खुदावंद है, दीवान है, हमें बचा। शागिर्दों के याद आया कि मसीह के ताल्लुक से लिखा था, नबियों ने पेशन गोया की थी कि वो आएगा तो इस तरह से आएगा, गधे पर सवारी करेगा, छलनी में पैदा होगा, सलीब पर जान देगा, तीसरे दिन जी उठेगा। ये सारी नबूवतें हुई। और अब मुझे याद आया कि ये मसीह के बारे में लिखा था। वो साथ साथ चेक भी करते थे कि जो प्रेडिक्शन जो नबूवतें हुई हुई है वो साथ साथ पूरी भी हो रही है। अब देखिए जरा पढ़े आगे। बस उन लोगों ने गवाही दी जी जो उस वक्त उसके साथ थे जी जब उसने लाजर को कब्र से बाहर लाया जी और मुर्दों में से जिलाया था। जी इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले। लोगों को पता था कि यीशु ने क्या क्या करिश्मे दिखाए हैं। जी कि उन्होंने सुना था जी कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। उसे मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, हाँ फरीसियों ने आपस में कहा सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो जहान उसका पैरो हो चला। ये फकीह, ये फरीसी, ये सदूकी, ये शरा के आलम, ये मुअल्ला, ये लीडर, ये लोग, ये मजहबी ठेकेदार, ये मजहबी रहनुमा यीशु मसीह के बारे में मुखालफत कर रहे थे। और क्या कहने लगे, देखो पूरा जहान उसका फॉलोअर हो गया, देखो हर कोई यीशु के पीछे पीछे है। और कुछ सोचो। तो फिर उन्होंने क्या सोचा, आगे जाके आपको पता है ईद फसह के मौका पर, ईद पर जो एक डाकू को छोड़ दिया जाता था, क्या हुआ वो सारी बात आगे चलकर हम सीखेंगे। लेकिन आज जो खास बात है वो ये है कि बादशाह को बड़ा भरपूर वेलकम दिया। उसी चंद दिन के बाद उसी हजूम ने क्या कहा, इसे क्या करो, हजूम क्या कह रही, जरा ऊंची आवाज में कहे। कैसे उन्होंने आवाज लगाई, जरा आप भी लगाए, जरा ऊंची आवाज में कहते जाए। वो कहते गए सलीब दे, सलीब दे, सलीब दे, सलीब दे। पहले क्या कहते थे, होशाना मुबारक है जो खुदावंद के नाम से आता है, इस्राएल का बादशाह। स्टेटमेंट बदल गई। वजह पता क्या है, उनका अपना एक मुतालबा था कि हमें क्या कर, बचाओ, तुम्हारा बादशाह है। अब वो आज भी लोग ऐसे ही करते हैं, सुने गौर से, आज भी बहुत सारे लोग ऐसे ही हैं उन यहूदियों की तरह। उनके अपने जाती कुछ मफाद होते हैं चर्च से, और वो इसलिए बड़ी क्या करते हैं, खादम की अवगत भी करते हैं, खादम के पीछे पीछे बातें भी बड़ी अच्छी अच्छी। तो जब वो कुछ अर्से बाद देखते हैं कि यार ये साडा जेड़ा मुतालबा वो तो पूरा नहीं हो रहा, जेड़े मकसद असी चर्च कायम किया है या जिस मकसद के लिए पांच साहब के पीछे आए हैं वो तो हुआ नहीं है, तो फिर पांच साहब की क्या कर दी शुरू, मुखालफत, बुराई। पहले बड़े अच्छे अल्फाज पादी साहब के लिए, उसके बाद बड़े नेगेटिव अल्फाज। पीछे एजेंडा क्या था, अपने हिडन एजेंडे थे, कुछ अपने मुतालबे थे। इसी तरह यहूदियों का भी यही हाल था। जब उनका वो मुतालबा पूरा नहीं ना हुआ तो फिर वो क्या कहने लगे, सारे सलीब दे, बराबर को छोड़ दे, मसीह को सलीब दे। लेकिन मसीह खुदावंद बनी इंसान की निजात के लिए आए। लूका के इंजील 9वें बाब के अंदर क्या लिखा है, 19वें बाब की 10वीं आयत में, इब्ने आदम, लेकिन क्योंकि इब्ने आदम खोए हुए को ढूंढने और निजात देने आया, और क्या देने आया है, निजात देने आया। मैं आज लाइव इस बात का बड़ा प्रचार करता हूं और पाम संडे के मौके पर ये बयान करता हूं कि मसीह खुदावंद हमें ये दुनियावी आजादी, निजात, सलेशा, रिहाई, मखरशी देने नहीं आया।
बाग अदन के अंदर गुनाह सरजद हुआ और तमाम दुनिया उस गुनाह की लपेट में आ गई और उस अबलीस के शिकंजे में आ गई और अब अबलीस से कोई छुड़ा नहीं सकता था, अबलीस से कोई हमें बचा नहीं सकता था। अंबिया असगर अंबिया अकबर आए और वो चले गए, जंगें हुई, लड़ाइयां हुई, आजादी की तहरीकें चली, लेकिन कोई निजात नहीं दे सका। निजात किसने दी? खुदा के बेटे यीशु मसीह ने, और शरीर के ऊपर छठा कलमा बयान किया और ऐलान कर दिया, तमाम हुआ, निजात का काम तमाम हुआ और निजात का बंदोबस्त किया। लेकिन आज भी बहुत सारे चले ते नालायक लोग, thinkless people, senseless people, वो पता क्या है? आज भी इंतजार में है कि यीशु आएगा, अभी वो आया ही नहीं है। यहूदी कौम बनी इस्राइल अभी इंतजार में कि यीशु नहीं आया, जबकि यीशु आ चुका, अब उसकी दूसरी आमद होगी और वो देने क्या आया है? निजात, रिहाई। और कलाम में लिखा है, जो कोई खुदावंद का नाम लेगा वो निजात पाएगा। निजात लिखा, शिक्रिया नबी ने ऐलान किया, निजात उसके हाथ में है, वो निजात का मुंबा है, निजात का बादशाह है और वो यीशु मसीह है। वो ये वाली अबलीस से छुड़ाने के लिए आया, गुनाहों से रिहाई के लिए आया कि हम गुनाहों से रिहाई पाए। और एक और खास बात वो इसलिए आया कि हमें आसमान की बादशाही मिलनी चाहिए, हमें अपनी जिंदगी में दाखिल कर दे, हम जमीन के वारिस होने के साथ साथ अपनी बादशाहत के अंदर भी चले जाएं। वो ये वाला प्रोजेक्ट पैकेज हमारे लिए मसीह खुदा वो लेकर आया था, लेकिन लोगों ने दुनियावी पैकेज की खातर मसीह को क्या कर दिया? सलीब पर चढ़वा दिया। गो ये प्लान खुदा की तरफ से था और फिलिपियों के खत में लिखा है कि वो अपनी शर्म की बातों पर फख्र करते हैं और उनका खुदा उनका पेट है। खजूर की डालियां लेकर वेलकम तो किया, लेकिन बाद में स्टेटमेंट बदल गई। आज मैंने और आपने क्या करना है? खुदा करे कि हम ऐसा ना हो कि पहले वेलकम करते रहिए तो बाद में पादरी साहब के पीछे गल्ला करते रहिए। खुदा साडा काम नहीं होया, पीरा फकीरा को गए सा ओथे हो गया तो वक्ती तो रहा तो डबल नुकसान हो गया। कभी भी खुदा उनको मत आजमाए, कभी भी खुदा उनको मत आजमाए, बल्कि हर वक्त उसके कदूस नाम को मुबारक कहते रहे, उसको पाक कहते रहे। वो पाक है, वो मुबारक है, वो अजीम है, वो निजात दहिंदा है, वो जिंदा है, वो जलाल का बादशाह है। ये हर वक्त हमारे बदन से, हमारी जुबान से इकरार होता रहना चाहिए कि वो बादशाह का बादशाह है। और आपको पता है शरीफ के ऊपर जो इल्जाम था वो भी लगा दिया कि ये बादशाहों का बादशाह। ये कहता है कि यहूदियों का क्या है? बादशाह। ने सूची से पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? उसने कहा, तुम खुद ही कहते हो। और वो बादशाह था, बल्कि उसकी रान पर क्या लिखा है? फैसला की किताब में क्या लिखा है? वो क्या है? खुदावंदों का खुदावंदो, बादशाह का क्या है? बादशाह है। अब ये खजूर की डालियां हमने पकड़ी है, खजूर किस बात की अलामत है? फतहमंदी की। और खजूर का दरख्त जो है ये हर वक्त सरसब्ज रहता है। और आइए एक जरा रेफरेंस देखते हैं, निकालिए पुराने अहदनामा के अंदर आए। ये यरूशलेम खजूरों का जिक्र खुरूज में आपको बहुत मिलेगा। इसका 15वां बाब और जरा 22वीं आयत से पढ़ दे, 23वीं से पढ़ दे जल्दी से, सुनिएगा गौर से। और जब वो मारा में आए तो मारा का पानी पी ना सके क्योंकि वो कड़वा था, इसलिए उस जगह का नाम मारा पड़ गया। तब लोग मूसा पर बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि हम क्या पिए? उसने खुदावंद से फरियाद की। खुदावंद ने उसे एक पेड़ दिखाया जिसे जब उसने पानी में डाला तो पानी मीठा हो गया। आगे लिखा,
वही खुदावन ने उनके लिए कायम और शरीयत बनाई और वही ये कहकर उनकी आजमाइश की कि अगर तू दिल लगाकर खुदावन अपने खुदा की बात सुने और वही काम करे जो उसकी नजर में भला है और उसके हुक्मों को माने और उसके आयन पर अमल करे, तो मैं उन बीमारियों में से जो मैंने मिस्रियों पर भेजी तुझ पर कोई ना भेजूंगा, क्योंकि मैं खुदावन तेरा शाफी हूं। लिखा फिर वो एलीम में आए जहां पानी के कितने चश्मे थे? 12 चश्मे। और खजूर के कितने दरख्त थे? 70 दरख्त। और वही पानी के करीब उन्होंने अपने डेरे लगाए। 12 से क्या याद आया आपको? 12 चश्मों से 12 शागिर्द। और क्या याद आया 12 से? 12 कबीले शाबाश। और 12 तख्त शाबाश। और बोले बोले 12 दरवाजे, 12 शागिर्द जी, 12 मोतियों के दरवाजे, 12 जी, 12 दरवाजे जी, थोड़ा ऊंचा, 12 टोकरे, 12 पत्थर शाबाश, वेरी गुड। ये स्टडी भी हो रही है। 12 चश्मे कामलियत का अदद 12 का नहीं, वो 7 है कामलियत का, फतह का। सुनिए, और 70 से क्या याद आया? 70 से 12 की भी स्टडी हो गई। 70 से क्या याद आया आपको? 70 खजूर के दरख्तों का जिक्र है कि वहां पर 70 खजूर के दरख्त थे और पानी के करीब उन्होंने अपने डेरे लगाए। वो खजूर के दरख्त पानी के नहर के दरिया के किनारों पर लगे थे। 70 से क्या याद आया? इधर से कलीसिया बताए पहले। इधर 70 से क्या याद आया? शाबाश शाबाश बोले तो 7 की बजाय 70 बार उसके गुनाह क्या कर दे? माफ कर दे। भाइयों आपको क्या याद आया 70 से? जी भाई लाली, हाँ ये तो हो गया। इसके अलावा भी है जिक्र। शाबाश शाबाश। चलो बहनों आपकी तरफ। 70 गुना, 60 गुना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। 70 कोई नहीं। और 70 शागिर्द भेजे मनादी लई। वो बड़ी खुशी ना वापस आए कि खुदावन बदरुए हमारे 70 वापस आए और कहा खुदावन बदरुए हमारे ताबिया है। तो खुदावन ने क्या जवाब दिया? जेडे बदरुआ करते बड़े खुश होते हैं, लो जी मैं बदरू कट के आया। वो अपने आप को फिर बड़ा पादरी भी समझते जे कि मैं कट के कड्डी, हालांकि यीशु मसीह की कुदरत ने है, वो इख्तियार ने है। वो कहते हैं असी कड्डी है, लेकिन वो खुश हुए। यीशु मसीह ने क्या इस तो खुश ना हो कि बदरूआ तुहाडे ताबिया ने, बल्कि इस तो खुश हो कि किताबे हयात च तुहाडे नाम लिखे हुए हैं। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। तो ये कैसे हो गया? निजात दहिंदा की वजह से। और लिखा है कि 70 खजूर के दरख्त थे और वही पानी के करीब उन्होंने अपने ये खजूर का दरख्त हर वक्त सब्ज रहता है। आमीन। आप उसको जब भी देखेंगे आपको सब्ज नजर आएगा, मुरझाया हुआ नजर नहीं आएगा। कलीसिया को कैसे होना चाहिए? कलीसिया को कैसे होना चाहिए? हमारा खुदावंद हमेशा ही क्या है? सब्ज है। वो कभी भी मुरझाता कि मुरझा जाता है? कितने लोगों का ख्याल है कि हमारा खुदावंद मुरझाता है? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो हमेशा क्या रहता है? सब्ज रहता है जी। भीड़ में से बात फरिश्तियों ने उससे कहा, भीड़ में से बात फरिश्तियों ने उससे कहा, ऐ उस्ताद अपने शागिर्दों को डांट दे। अपने शागिर्दों को डांट दे। उसने जवाब में उससे कहा जी तुमसे कहता हूँ, मैं तुमसे कहता हूँ, अगर ये चुप रहे तो पत्थर चला उठेंगे। पत्थर क्या होंगे? बादशाह जोश में है, यरूशलेम के लोग जोश में। तो यीशु मसीह ने साथ ही कब्रिस्तान था कि क्या पत्थर है? भाइयों इसका क्या मतलब है? पत्थर चला उठे। इधर वाले भाई जरा बताएं, पत्थर चला उठेंगे। शाबाश शाबाश भाई बताएंगे जरा जल्दी से, शाबाश भाइयों। इसका क्या मतलब है कि पत्थर चला उठेंगे? वो पत्थर कैसे चला उठेगा भाई? जी इसमें खुदावंद की कुदरत का सबूत है जाहिर। खुदावंद की कुदरत का, खुदावंद की कुदरत उसकी हुजूरी ज़ाहिर होनी थी। ओके, और क्या बताएं? वहां पर क्या था? जी वेद भाई साहब वर्षित दिन आला था, कलाम का भी थोड़ा पता है। वहां पर क्या था?
یہ تو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ہوتے قبرستان سے نقل ماری ہے آپ نے. اوکے اور کوئی بتایا بھائیوں میں سے پتھر چلا اٹھیں گے اس سے میں کہہ رہا ہوں تھوڑی اسٹڈی بھی ہو جائے. قبروں میں سے مردے زندہ ہو جائے. اور شاباش میں کہتا ہوں پوچھے جی شاباش بہن سائیکا گاڈ بلیس یو. خدا نے سر آدم نو مٹی تو بنایا جی اگر مٹی خاموش ہوگی تو پتھر جلا اٹھے. مٹی خاموش ہو گئی تھے پتھر جلا. پتھر چلا اٹھے. اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو پتہ ہے یہودی قبریں کس طرح کی ہوتی ہیں ان کے اوپر پتھر. آپ جائیں ادھر پیچھے جو پٹھانوں کا کلچر ہے وہ بھی وہی ہے. قبروں کے اوپر کیا ہوتے ہیں پتھر رکھے ہوتے ہیں. ان سے مراد یہ تھی کہ یہ پتھر یعنی جو قبریں ہیں ان کے اندر جو مردے ہیں وہ زندہ ہو کر چلانا شروع ہو جائیں گے اور وہ کیا کہنا شروع کر دیں گے کہ یہی بادشاہ کا بادشاہ ہے, یہی خداوندوں کا خداوند ہے, یہی سیویئر ہے, یہی بچانے والا ہے, یہی چھڑانے والا نجات دہندہ ہے اور کوئی نہیں ہے. اے زندہ خاموش ہو گئے کیا جڑے مرے ہوئے تھے پئے نے اے بھی چلاؤ ہیلیلویا. کسی اور نبی کے بعد